پوچھنی تھی، اس کا مفہوم پوچھنا تھا. کہا پوچھے کیا بات ہے؟ پوچھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیدوا الطیور فی اوکارہم، کہ حضور کا فرمان ہے، نبیوں کے امام نے فرمایا ہے کہ پرندوں کو ان کے گھونسلے میں بیٹھنے دو، ان کو مت اڑاؤ. اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت نے پوچھا تم نے کیا سمجھا اس حدیث کا مطلب؟ تو اپنا مفہوم جو ابھی گفتگو ہوئی تھی انہوں نے بیان کر دیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہنا یہ حدیث پاک کا مطلب نہیں ہے. کہ پھر حضور کیا ہے؟ کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کے پس منظر کو بھی جاننا ضروری ہے. یہ دھیان میں رکھیں کہ قرآن مجید اور رسول اللہ کی حدیثیں یہ کوئی بات بھارتی نہیں ہے، یہ کوئی چنا مٹانا نہیں ہے کہ ہر کس و ناقص اس کو پڑھ لے، اس سے مسئلہ استنباط کر لے اور اخذ کر لے. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ رسول اللہ کا کلام ہے، حدیث مصطفیٰ. اس کو کما حقہ سمجھنے کے لیے کئی علوم درکار ہے، اور کئی علوم کہاں ملیں گے؟ یہ آپ کو اس کے جو ماہرین ہیں ان کی بارگاہ میں ملیں گے. احادیث کے اور قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنے والے دیگر آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے اور رسول اللہ کی حدیث کا مطلب کیا ہے. اگر قرآن مجید کو ماہرین اور احادیث مصطفیٰ کو شارحین کی تشریح کی روشنی میں سمجھا جائے تو طالب علم صحیح مطلب تک پہنچتا ہی، اور بغیر استاذ کے، بغیر تحقیق کے، بغیر کسی بہتر رہنما کے احادیث مصطفیٰ اور قرآن کی آیتوں کو ترجمہ کر کے میں قرآن کو سمجھ لوں تو مسلمانوں جان لے. پوچھا آپ کیا مطلب ہے؟ نوجوان نے کہا کہ حضور، کہا تم نے کیا سمجھا؟ اپنا مطلب بیان کیا. کہا یہ حدیث پاک کا مطلب نہیں ہے، یہ حدیث کا تم نے ظاہری معنی بیان کیا، ترجمہ پڑھ کے بس اس کا مفہوم بتا دیا. کہنا کہ رسول اللہ صاحب حکمت ہیں، حکیم ہیں، ان کی باتیں اور ان کے اقوال کو سمجھنے سے پہلے آپ کے محاوروں کو جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پس منظر میں یہ فرمان جاری کیا ہے کہ رات میں پرندوں کو اپنے گھونسلوں سے نہ اڑاؤ، ان کو رہنے دو. کا حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ حدیث کا مطلب یہ ہے، اب سنو حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے، کہ مکہ شریف ہی نہیں بلکہ پورے عرب شریف میں رات کے وقت لوگ اکثر رات کے وقت سفر کیا کرتے تھے. سفر کے لیے رات کے وقت نکلا کرتے تھے، اونٹوں کی سواریاں ہوتی تھی، گھوڑوں پر بیٹھتے تھے اور ستاروں کو دیکھتے تھے، اپنی سمتیں مقرر کرتے تھے ماہر تیز کے. اس کے بعد ایک جہالت ان میں یہ تھی کہ سفر کرے نہ کرے، مکہ کا سفر کروں یا نہ کروں، بیت المقدس جاؤں یا نہ جاؤں. اس سفر کے لیے دھیان میں رکھیں، میں سفر کی بات کر رہا ہوں، سفر کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں ایک نسخہ عطا فرمایا ہے. تجارت کرتے ہیں کہ بزنس کروں کہ نہ کروں، کاروبار میں اپنا پیسہ ڈالوں کہ نہ ڈالوں. رسول اللہ نے اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا ہے. آج کئی لوگ کاروبار میں بڑی بڑی جو ہے تجارتوں میں اپنا پیسہ ڈال دیتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں. رسول اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ میرے امتیوں، ہمارا نبی تمہیں ایک گفٹ دے رہا ہے کہ جب بھی تم کوئی بڑا کام کرنا چاہو، چھوٹا کام کرنا چاہو تو استخارہ کر لیا کرو. استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے مشورہ، اور حضور نے اس کا طریقہ بتایا کہ مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز استخارہ ادا کر لو. پورا طریقہ آپ علماء سے جان لے، حضور نے بتایا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جب تم مشورہ طلب کرو گے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں، تو مشورہ دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ تمہیں اشارہ دے گا. اب جو اللہ فرمائے گا اس پر عمل کرو، کبھی خسارہ نہیں ہوگا، کبھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن استخارہ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بابا وقت ہی نہیں ہے، اتنا ہم اپنی زندگی میں شارٹ کٹ چاہ رہے ہیں. اللہ ہمیں سعادت عطا فرمائے. تو کہتے ہیں وہ نوجوان عالم کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ رات کے وقت جب اہل عرب سفر کیا کرتے تھے تو اس وقت چونکہ جہالت کا دور ہے، ابھی اسلام کا جو ہے دورہ نہیں ہے، صحابہ کرام نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کہیں بات چھڑ گئی. یہ بنا لوگ سفر میں جب جاتے ہیں تو سفر کروں کہ نہیں، یہ سفر میرے لیے برکت والا ہے یا میرے لیے منحوس ثابت ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرتے تھے، درخت پر کہیں انہیں پرندوں کا گھونسلہ اگر نظر آتا تھا تو وہاں جاتے تھے اور پرندوں کو گھونسلے سے رات کے وقت اڑا دیتے تھے. حضور ایسا کہاں. اس کے بعد وہ دیکھتے تھے کہ پرندے کو جب ہم نے گھونسلے سے اڑایا کہ وہ دائیں طرف گیا ہے یا بائیں طرف. اگر وہ بائیں طرف جاتا تھا تو یہ فیصلہ کرتے تھے، یہ شعور نکالتے تھے کہ نہ اس سفر میں جاؤں گا تو میرے لیے منحوس ثابت ہوگا، یہ سفر میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. اور اتفاق سے کبھی اگر وہ پرندہ دائیں جانب اڑ جاتا تھا تو نتیجہ یہ نکالتے تھے کہ نہیں، میرا اس سفر میں کام بن جائے گا، میرے سفر میں جو ہے تجارت اچھی ہوگی، کامیابی مجھے حاصل ہوگی، اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام اسلام میں جب داخل ہو چکے ہیں، ابھی انہیں مسئلے کا علم نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو ابتدائی اسلام میں، آغاز اسلام میں یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر پر بھروسہ
शगुन निकालो। जो मोमिन होगा, वो जो मुसलमान होगा, वो कभी शगुन नहीं निकालेगा, वो इस्तिखारा करेगा और वो अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, अल्लाह की जात पर भरोसा रखेगा। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अतिरुत तुयूर फी औतारिहिम, ये औतारिहिम के परिंदों को उनके घोंसले में बैठने को मत उड़ाओ। इमाम अहमद बिन हम्बल और हजरत यहया इब्न मईन और हजरत इसहाक इब्न राहबिया ये देख सुनकर कि हदीस पाक का ये मतलब है, हमने तो हदीस का मतलब कुछ और ही समझा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अहमद बिन ज़मान हाल से दोनों इमामों से कहते हैं कि मैंने नहीं कहा था कि ये नौजवान जो इल्म रखता है और ये नौजवान जो इल्म हदीस पर मलका रखता है, पूरे मक्का ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसका कोई सानी नहीं है। अगर हदीसों को समझना है तो इस नौजवान से समझना, अगर कुरान की आयतों की तफसीर समझनी है तो इस नौजवान से समझना। नौजवान के उस्ताद हैं सुफियान इब्न उवैना, हज़रत सुफियान इब्न इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। ये भी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। इमाम बुखारी के जो ये आजकल इमाम बुखारी ही सबको याद है और कुछ लोगों को कुछ जरूरत से ज्यादा याद है इमाम बुखारी। तो ये देखें इमाम बुखारी के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद के उस्ताद इसहाक इब्न राहबिया, जिनको बिलाशुबा अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है। हदीस में अपने जमाने में जो है उस्ताद हैं, वो जब उसी मस्जिद हराम में बैठकर दर्स देते थे, हदीस का दर्स देते थे, वो नौजवान उनके बगल में अपनी दर्सगाह लगा लेता था। और जब उनसे कोई पूछता था कि हुजूर कुरान मजीद की आयत की तफसीर हमें बताएं, हदीस मुस्तफा का मफहूम बताएं, तो आप इशारा करते थे कि वो जो नौजवान कोने में बैठा हुआ है उसके पास चले जाओ और उससे तुम हदीस समझना, उससे कुरान की आयत की तफसीर समझना। ये कौन कह रहे हैं? उस नौजवान के उस्ताद गवाही दे रहे हैं और फरमाते हैं कि पूरे रोए जमीन को, पूरे रोए जमीन पर हदीस मुस्तफा को और कुरान मजीद को उनसे ज्यादा समझने वाला इस वक्त कोई नहीं है। जानते हैं तारीख में उस नौजवान को क्या कहा जाता है? तारीख में उस नौजवान को हज़रत इमाम शाफई मोहम्मद बिन इदरीस मुत्तलबी कहा जाता है। ये वो फर्जंद हरम इमाम शाफई है जिनकी विलादत से पहले अल्लाह के रसूल ने बशारत दी थी, आलिमो कुरैश यमनउ तबाक़ल अर्द इल्मा, कि कुरैश की मक्का की सरजमीन पर कुरैश में एक ऐसा आलिम पैदा होने वाला है जो पूरे हुए जमीन को इल्म से भर देगा। अल्लाह। इमाम बुखारी के उस्ताद हज़रत इमाम हुमैदी, इमाम हुमैदी के उस्ताद इमाम शाफई। वास्ता ज़हन में रखिए, इमाम बुखारी ये इमाम शाफई के शागिर्दों के शागिर्द हैं। फर्जंद हरम इमाम शाफई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने के मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है और जमाने ने उनको नासिर सुन्नह का लक़ब दिया है। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी है उम्मत को कि हर 100 साल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह पूरी दुनिया में एक न एक आलिम ऐसा भेजेगा, मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, कि दीन पर जितने हमले होंगे, कुरान पर, सुन्नत रसूल पर जितने एतराज वारिद होंगे, तरह तरह उसका वो जवाब देगा और वो मामूली बंदा नहीं होगा, खुदा का बंदों के लिए गिफ्ट होगा। उसे मुजद्दिद कहा जाता है। पहली सदी का मुजद्दिद हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज को कहा गया है और इमाम अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं दूसरी सदी के मुजद्दिद बिल इत्तिफाक हज़रत इमाम शाफई मोहम्मद बिन इदरीस है। वो फरमाते हैं कि मुसलमानों ने एक इल्म तो हासिल किया, दूसरे इल्म को जाहिर कर दिया। क्योंकि इल्म तो दो ही है, एक इल्म शरीयत है और एक इल्म तिब है। इल्म तिब को आज डॉक्टरेट कह दिया जाए, मेडिकल साइंस कह दिया जाए। इमाम शाफई ने अपने जमाने में कहा कि मुसलमानों ने इस इल्म को जाहिर कर दिया है। हालांकि जानते हैं कि इमाम शाफई जबरदस्त अपने जमाने के सर्जन है, जबरदस्त डॉक्टर है, जबरदस्त जो हकीम है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अफसोस जाहिर किया। आज नौजवान अपना जायजा लें, कौम मुस्लिम अपना जायजा लें कि सिर्फ अगर आप ये डिलीवरी के जो डॉक्टर होते हैं उन्हीं को देखने, आज कौम मुस्लिम में डॉक्टर है इल्ला माशाअल्लाह, फहरिस्त उठाकर देख लें। हमारे बच्चे रात के चौराहों पर यहाँ वहां पढ़ते रहते हैं। कराम में मुज्तहिदीन ने हमें दीन ही की तालीम पर हमें मरगूब नहीं किया, दीन की तालीम की तरकीब नहीं दी है, बल्कि बाज़ दुनियावी उलूम को हासिल करने की बजोर तरकीब दी है। आज अल्लाह ने कई पैसे वाले, कई अमीर कबीर ऐसे हैं कि अल्लाह ने उनको पैसा दिया, रात भर यहाँ वहां चौराहों में बैठे रहते हैं, गीबतें करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते रहते हैं। मुसलमानों को खुदा ने तुम्हें जिंदगी दी है, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी नहीं है, ये खुदा की अमानत है। इसका एहसास करो, जागो, बेदार हो जाओ। अगर तुम दुनियावी तालीम कर रहे हो तो इस नीयत से तालीम हासिल करो कि मुझे पढ़ना है अपने खानदान के लिए नहीं, बल्कि अपनी कौम के लिए और अपने रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए पढ़ना है। हुजूर की उम्मत के मसाइल को हमें हल करना है। आज एक बच्ची डिलीवरी का जब वक्त आता है तो कितने हजरात हैं डिलीवरी कराने के लिए मर्दों के पास जाती हैं,
क्या कौम मुस्लिम में ये बेदारी नहीं, पैसा नहीं? क्यों नहीं अपने बच्चों को जो है इमाम शाफी इसी तरफ रुझान दिला रही थे? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 30 रजब की तारीख है और इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असर के वक्त बीमार हो जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में रोने लगती है, अल्लाह मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिसको लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हो जाऊं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी नमाजें कबूल हुए कि नहीं, रोजे कबूल हुए कि नहीं। मौला मोहम्मद बिन इदरीस के आखिरी वक्त आ चुका है, मैं तेरे रहम करम से कि तुझसे भीख मांगता हूं कि मुझे बख्श दे। ये इमाम शाफी का अमल है, जिनके जिंदगी की हर रात 3 हिस्सों में तकसीम होती है। खुद फरमाते हैं कि रात के मैंने 3 हिस्से किए थे। रात के एक हिस्से में मैं सोता हूँ, रात के दूसरे हिस्से में उठकर मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, और रात के एक और हिस्से में कहते हैं कि मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ। आज तो हमारी सारी रातें मोबाइल में गुजर जाती हैं, और मोबाइल पर जो है फिर जो मैसेज आते इस्लाम के खिलाफ और उसके जवाब देते समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा है, मुआवजा करो। सुना ये मोबाइल ये धोखा है। रातों को जागना है तो अपने मकसद को समझो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम शाफी बीमार हुए, उसके बाद जो है असर की नमाज पढ़ी आपने, मगरिब की नमाज पढ़ी, ज़रज़रा शुरू हो गया, इशा की नमाज आपने अदा फरमाई। आपके कई शागिर्द आपके पास मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इक़राउ इंदा मौताकुम यासीन, अपने मुर्दों के पास यासीन की तिलावत किया करो। इमाम शाफी के इंतकाल का जब वक्त है तो आपके एक शागिर्द बैठ गए और सूरह यासीन की तिलावत करने लगे। सूरह यासीन पढ़ी गई। इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आपके शागिर्द इमाम मुस्लिम पूछते हैं, ए फ़हालुक या उस्ताद अल-उस्ताज़ीन, ए आलिमों के आलिम है, उस्तादों के उस्ताद, आपकी तबीयत कैसी? का मेरा वक्त अल्लाह की बारगाह में जाने का, बस मैं अपनी मग़फ़िरत के लिए बस तलबगार हूँ। मैं अपने अमाल नहीं बल्कि अल्लाह के रहम करम पर जा रहा हूँ कि अल्लाह मुझे अपने रहम करम से बख्श देगा। ये अल्लाह वालों का हाल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इशा की नमाज पढ़ने के बाद इमाम शाफी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर ज़रज़रा तारी हो जाता है और लम्हों में आपकी रूह कब्ज़ हो जाती है। शब जुमा है, जुमा के दिन आपको जुमा की नमाज के बाद जो है आपको जो है नमाज जनाजा पढ़ी गई और तदफीन जो है आपकी की गई। फरमाते जब मैं वापस आ रहा, आपके शागिर्द फरमाते जब हम वापस आ रहे थे हमने देखा कि आसमान पर चांद शबे रजब का जो आखिरी तारीख है, शाबान का चांद तुलू हो रहा था। ये कैलेंडरों में जो तारीख लिखी हुई है 4 रजब को, मालूम नहीं किधर से, बहुत तहकीक की मैंने कि कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत मिले, लेकिन ध्यान में रखें इमाम शाफी का उर्स या उनकी तारीख़ विसाल 4 रजब नहीं है, बल्कि रजब की आखिरी तारीख है और आपका विसाल हुआ है, और शाबान की पहली तारीख को आपको जो है सुपुर्द खाक किया गया है। घरों में फातिहा पढ़े, इसाले सवाब करें कसीर इस अजीज इमाम के लिए, और यहीं तक महदूद न रहे। अपने बच्चों को इमामों को समझाएं वो क्या थे, उनकी तालीमात क्या थी, उनका जो है